Good evening, everyone, and welcome to this seminar on virtual net metering. First of all, thank you for sparing the time on a Friday evening and attending this seminar. I hope we will be able to give you something valuable, some valuable input, some valuable knowledge which can help you for your society and for your individual members. So I will start. There are few people expected, but they will join as well. Okay? तो क्या हुआ है? इसका सिचुएशन ऐसा सबका मुझे थोड़ा पेन करेगा शायद ऊपर देख के, but we are not. Is it visible everybody? दिख रहा है ना? Yeah. And am I audible? Everybody at the back. रामपाल जी आपको आवाज आ रहा? So first of all, let me introduce myself. My name is Chinmay Divekar. I am the director of Coco Solar. So I'll just tell you. पहले just go back. Yes, sir. The first question everybody asks me is Coco क्या है? What is Coco? Okay. So I want to give you the answer to what is Coco. Okay. So Coco is a Japanese word. Okay. It's a Japanese word which means it is the volume of rice required to feed a family for one full year. मतलब एक फैमिली को अगर आपको एक साल तक राइस फीड करना है so the volume that is required, that is called Koku in Japanese, and it is nothing but energy, which is why we have chosen that name. So that is the name Koku Solar. Okay. I will introduce some team members here. Shekhar, where Shekhar? अभी बाहर है. So आएगा तो I will just introduce you. So Shekhar is one of our business development managers, and Ashok. Yeah. Mr. Ashok Nair, he is also one of our business development managers. So he handles, so he has been coordinating with all of you. You may, so he handles all the rest of Thane except Gordondar Road. You know, I mean, up to Hiranani Estate, all the societies he coordinates with all of them. And Mr. Shekhar Panchal, he is our business development manager. So he handles from Hiranani Estate onwards till entire Gordondar Road up to Bhaindarpada and that entire area. So that is his. So अगर आपको कोई query हो तो you should get in touch with him. Next. Mr. Sunil नीचे है. आपका जो नीचे welcome कर रहे थे, so he looks after all the liaison work with MSEDCL because आपको मालूम है सोलर में MSEDCL के साथ बहुत काम लगता है. So he handles that for our company. This is Goraksh. So गोरक्ष जो है ये पूरा ऑफिस में प्रपोजल बना के आपको भेजते हैं. तो आपका कोई भी इंक्वायरी आया तो गोरक्ष सेंड्स इट. प्लस वी हैव अ फ्यू अदर पीपल हु आर नॉट हियर टुडे. So maybe at a later time we will meet again. Next. So now this seminar is organized for all of you. You are all managing societies. Some of you for many years I know. Swati madam I know personally because she manages the same society in which I stay. Okay. And some of you are already our customers, so that is why I know you very well. So basically, society manager job is very crucial because society is a very thankless job. आपको सबको मालूम है. Everybody is the owner. In a company क्या होता है? एक owner होता है और बाकी सब employees होते हैं. इधर उल्टा है, इधर सब owner है. So it is a thankless job, but at the same time you have to have patience to manage all the owners and so many others. So first of all, it takes patience, so we salute you for that. I know how much effort it takes and what all kind of management goes into that. Now, आपका रोल बहुत critical है in two ways. एक तो क्या है कि आप smooth functioning करने के लिए you have to next improve the financial health of the society. अगर society का financial health बराबर नहीं है तो सब प्रॉब्लम एस्केलेट होते रहता है. I mean, so many societies go into administration and so many other things. So keeping the financial health of a society running good is a very important part. Okay. Now इसमें आप क्या कर सकते हो? I mean, what is your role or how you can help the financial well-being of a society? Obviously, managing any institution. You can add a lot of value, and I'm sure you must all be adding value. But what I'm going to talk about today is related to solar, so I'll focus on that. So typically, हमने जितने society से देखा है, we have analyzed. So typically, जो भी उनके maintenance के खर्चे हैं, उसका 1/3 is typically the electricity cost. Okay? So your common area meter का जो bill है,
that is typically 30% of your maintenance cost. Sometimes it is higher. Like we have seen some societies which are like 40 stories and 45 stories and they have an STP plant within that. तो उनका तो और भी ज़्यादा है. Sometimes it goes up to 60%. So if you manage this one item, which is the electricity cost of your common area meter, so it will really give you a lot of the society will benefit a lot. Plus जो funds इसमें बचेगा, that you can use it for so many other projects that otherwise you may not be able to do. Okay? So we always say solar पहले करना चाहिए, उससे जो पैसा बचेगा, उससे बाकी तुमको जो करना है करो. Okay? Now, we all know that in Thane, most of you are from Thane, Mulund and that area. So there is only one monopoly supplier, which is MSEDCL. अपने को we have no choice. Unlike in Mumbai, you can choose. Somebody wants to go to Adani, they can go to Adani, they can go to Best, they can go to Tata. यहाँ पे अपने को choice नहीं है. We have to go with MSEDCL. And MSEDCL का अगर आपने आपका bill totally analyze किया होगा, so the variable rate is 21 rupees per unit, which is one of the highest in the country. Okay? Secondly, आप इसको change नहीं कर सकते. And इस पे कोई saving होता है तो you can use that money because it's a big sum. Next. तो solar energy क्या है? एक basic concept मैं I would like to quickly explain because what happens हम लोग सब बात बहुत करते हैं solar, लेकिन एक main question सबके सामने आता है, लेकिन सोलर तो दिन में ही जनरेट करेगा, लेकिन हमारा कंजम्पशन तो रात को भी है और हम लोग बैटरी लगा रहे नहीं. और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सोलर तो सिर्फ दिन में जनरेट करता है, रात को तो जनरेट नहीं करता है. और हम लोग कहीं पे भी सोलर प्लांट में बैटरी नहीं लगा रहे, तो फिर रात को आपका कैसा पैसा बचेगा? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट मेनी पीपल आस्क. ओके, सो फॉर दैट आई विल जस्ट क्विकली इफ यू सी दिस स्लाइड. ओके, तो ये ग्राफ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. तो सोलर का जो जनरेशन है ना, दैट इज ट्रैक बाय दैट ब्लू कर्व जो आपको दिख रहा है. सो सोलर कैसा है कि सुबह 6 बजे से लाइट अगर चालू होता है तो इट स्टार्ट जनरेटिंग, मतलब 6 बजे से जनरेशन चालू होगा. इट पीक्स एट अराउंड 12 o'clock, दोपहर को 12-1 बजे के बीच में पीक जनरेशन होता है, फिर अगेन ड्रॉप होता है एंड अगेन 6 बजे के बाद जीरो हो जाता है. तो ऑब्वियसली सोलर कैन नॉट जनरेट एट नाइट, राइट? नाउ What happens is आपका जो कंजम्पशन है, डिमांड है, वो तो 24 आवर्स चलता रहेगा. लिफ्ट पंप वो तो रात को भी चालू है, दिन को भी चालू है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलर में आप चलाएंगे, बराबर? सो जो डिमांड है ना, वो जो फ्लैट लाइन दिख रहा है, दैट इज योर डिमांड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज हम लोग जब सोलर लगाते हैं तो आपका जो करंट मीटर है, दैट इज रिप्लेस्ड विद व्हाट इज नोन एज द नेट मीटर. ओके, अभी जिन लोगों ने ऑलरेडी लगाया, जैसे गुडविल में है या ब्रुकहिल में है या सम ऑफ द सोसाइटीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, दे नो दैट द एग्जिस्टिंग मीटर जो है दैट इज रिप्लेस्ड विद व्हाट इज नोन एज अ नेट मीटर. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि जब सोलर जनरेट नहीं कर रहा है तो यू इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द MSEDCL. ओके, एंड व्हेन सोलर स्टार्ट जनरेटिंग, देन फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू सोलर. वो पहले कंज्यूम होता है, मतलब खुद आप जनरेट कर रहे हो, पहले यूज कर रहे हो. उस आपके कंजम्पशन से अगर ऊपर गया जनरेशन तो ग्रिड को एक्सपोर्ट होता है. ओके, बिकॉज द मीटर जो हम लगाते हैं, नेट मीटर, इट इज नोन एज अ बाई डायरेक्शनल मीटर. मतलब अगर आप इंपोर्ट करें तो एक साइड में घूमता है और अगर एक्सपोर्ट करें तो उल्टा घूमता है. सो इट्स कॉल्ड अ बाई डायरेक्शनल मीटर. तो आपका जो नेट मीटर लगता है, सो व्हाट हैपेंस इज इट ट्रैक्स योर इंपोर्ट एंड योर एक्सपोर्ट. ओके, सो बिल जब आपको आता है finally at the end of the month, you're only billed for the net units, मतलब your import minus export. That is why it's called a net meter. Okay, so this is the basic concept of solar. So हम लोग कहीं पे भी बैटरी नहीं लगा रहे. You are basically जब आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, MSEB से ले रहे हो, उसका आपको इंपोर्ट कर रहे हो, और जब आपका जनरेशन किक इन होता है दोपहर को 12 बजे ऑर्डर, देन यू आर एक्सपोर्टिंग. सो नेट ऑफ जो यूनिट्स है उसका आपको बिल भरना है. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेट मीटर. नाउ ये तो आप अगर रूफटॉप लगा रहे हो तो ये चलता है, बराबर? नाउ द प्रॉब्लम इज व्हिच इज व्हाट इज वर्चुअल नेट मीटरिंग. नेट मीटरिंग तो ये है, वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या है? वर्चुअल नेट मीटरिंग में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज में इश्यूज है. लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट नेक्स्ट वन. हाँ, अभी बिफोर आई गो टू द वर्चुअल नेट मीटरिंग, सी अगर आप रूफटॉप लगाते हो आज की तारीख में, इफ योर सोसाइटी हैज द स्पेस एंड हैज द फंड्स टू कैपेक्स करके वो इंस्टॉल करने का, तो इन लेस देन 2.5 years यू विल रिकवर द कैपिटल कॉस्ट ऑफ योर प्लांट. लेस देन 2.5 years. एंड उसके बाद
for 20-25 years, your electricity is practically free. Only you have to pay the AMC and the जो भी cleaning charges वगैरह है, okay? उस पे अभी currently capital subsidy भी है, which is almost 30% of the project cost. You are getting a capital subsidy. जिन्होंने पुराना प्लांट लगाया उस टाइम पे नहीं था, but last February से capital subsidy भी है. Then government policies are highly encouraging solar right now. You must be knowing कि PM सूर्य घर योजना करके बहुत aggressively promote कर रहे हैं, okay? And proven benefits है, मतलब आप कोई भी कस्टमर है जिसके पास ऑलरेडी रूफटॉप लगा है, you can check with them उनको कितना सेविंग हो रहा है सोलर लगा के. So it's a no brainer. आपको सोलर अगर आपकी बिल्डिंग में नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सोलर लगाना ही चाहिए, ओके? रूफटॉप पे कैपेक्स में. तो मेनी टाइम व्हाट हैपेंस इज कि बिल्डर ने क्या किया हुआ है, अच्छा फैंसी एलिवेशन देने के लिए कुछ लगा के रखा है उधर, बट दैट इज कॉजिंग अ शैडो ऑन द होल थिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट शैडो फ्री स्पेस इज नॉट अवेलेबल ऑन द टेरेस. अनदर प्रॉब्लम इज कि वाटर हीटर लगाए हुए हैं सब जगह. सी फॉर एग्जांपल सब ओसी लेने के लिए बिल्डर्स हैव टू सेट अप वाटर हीटर. जैसे टीएमसी में तो ये रूल है, अगर ओसी लेना है तो वाटर हीटर लगाना है. ना वाटर हीटर इज ऑक्यूपाइंग द सेम स्पेस बिकॉज वाटर हीटर के पैनल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ सोलर. हमारा जो सिस्टम है कंप्लीटली डिफरेंट, उसका कुछ लेना देना नहीं है. वो तो पानी गर्म करने के लिए, दिस इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो वाटर हीटर्स आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस. नाउ सोसाइटी में कभी-कभी हमने देखा है कि सब मेंबर्स आर सेइंग नहीं हमको गर्म पानी चाहिए, एंड सब मेंबर्स आर सेइंग नहीं हमको इलेक्ट्रिसिटी में सेविंग चाहिए. अनदर इशू इज मेनी सोसाइटीज में जहाँ पे स्ट्रक्चरल वीकनेस है, मतलब लीकेजेस है या कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस है, तो वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी या मेंबर्स को लगता है कि ऊपर लगाएंगे फिर वो लोड लेगा नहीं लेगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई पीपल डोंट डू सोलर. देन मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज सबको करने का है, लेकिन विद इन द मैनेजिंग कमेटी डिस्प्यूट है कि सोलर कैपेक्स में करना है या ओपेक्स में करना है या और कुछ करना है. सो वो घूमते रहता है बिकॉज एज यू ऑल नो मैनेजिंग कमेटी में एवरीबॉडी इज ऑनररी मेंबर. कोई फुल टाइम बैठ के वो काम नहीं कर रहा है, तो उनको जब मिलेगा टाइम तब मिलते हैं. सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. अनदर इशू इज कि इन जनरल इन अ सोसाइटी जो सबका है वो किसी का नहीं होता है. मतलब अगर पर्सनल है तो अपन फटाफट डिसीजन लेंगे, लेकिन सबका है तो किसी का नहीं होता. सो देयर इज अ जनरल लेथार्जी इन टेकिंग डिसीजंस. यू नो थिंग्स व्हिच कैन मूव फास्ट लाइक इन अ प्राइवेट कंपनी. अगर कोई चीज 15 मिनट में डिसीजन हो गया, 15 दिन में डिसीजन होगी, सोसाइटी में 1 साल लगता है बिकॉज आपको एचजीएम कराना है, सबका अप्रूवल लेना है एंड ऑल दैट, ओके? अनदर इशू इज कि बहुत सोसाइटीज में हमने ये देखा है कि ओसी नहीं मिला है अभी तक. बिल्डर ने जो भी उसको कंप्लीट करना है वो किया नहीं है, तो ओसी नहीं मिला है. अगर ओसी नहीं मिला है तो फिर ये प्रॉब्लम है कि अगर हम उधर सोलर लगाएंगे फिर ओसी का प्रॉब्लम होगा. सो पीपल कीप ऑन वेटिंग कि बिल्डर ने हैंड ओवर नहीं किया, करेगा तब हम करेंगे. सो वी हैव आइडेंटिफाइड दीस रीजंस व्हाई सोलर बेनिफिशियल होने के बावजूद नहीं लगता है बहुत सोसाइटी में या डिसीजन नहीं होगा. तो इसके लिए ऑल दीज प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअल नेट मीटरिंग. ओके, हाउ इट विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन आई टॉक अबाउट वर्चुअल नेट. नाउ इसमें क्या है, अनदर बेनिफिट ऑफ वर्चुअल नेट मीटरिंग इज दिस कि आप रूफटॉप पे जब सोलर लगा रहे हो तो यू कैन ओनली सेव द कॉमन एरिया मीटर का बिल, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर के घर के जो बिल है उस पे कुछ सेविंग नहीं हो रहा है बिकॉज आपके पास उतना जगह ही नहीं है रूफटॉप पे लगाने के लिए, बराबर. लेकिन वर्चुअल नेट मीटरिंग में एक तो आप कॉमन एरिया मीटर का भी सेविंग कर सकते हो, प्लस जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका इंडिविजुअल घर का भी बिल कट कर सकते हो, व्हिच इज द बिगेस्ट बेनिफिट. ओके, सेकंड, ये मेंटेनेंस का और क्लीनिंग का कोई हेडेक नहीं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय अस. मतलब आप रूफटॉप अगर लगाते हो तो मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसका क्लीनिंग करना पड़ता है, कुछ इशू आए तो. यहाँ पे उसका कोई हेडेक नहीं है, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय अस. ओके, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, सोसाइटी को कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा रहता है. ओके, एंड एट द कंज्यूमर एंड, मतलब आपके यहाँ पे कुछ जैसे मैंने बोला कि अगर आप सोलर लगाते तो वी चेंज द मीटर एंड इंस्टॉल अ नेट मीटर. इस केस में क्या है कि देयर इज नो चेंज एट द कंज्यूमर एंड. आपको जैसा है आपका वैसा ही रहेगा, जो भी चेंज होगा वो बैक एंड से होगा, हमारा जब एमएससीडीसीएल के साथ होगा. ओके, नेक्स्ट, so what is virtual net metering? Okay, I will quickly explain this concept to you. See, in one seminar I will not be able to maybe answer all your questions. We have given you a folder. उसमें there is a FAQ, frequently asked question है, तो at your leisure you can just go through that and see all the queries.
बट आई जस्ट क्विकली टेल यू, सो दिस इज अ न्यू स्कीम, ये नया रेगुलेशन आया है महाराष्ट्र में, इट केम इन अगस्त 2024। बहुत बार हम लोग जब ये वर्चुअल नेट मीटरिंग के बारे में जाते हैं, सोसाइटी में डिस्कस करते हैं, तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं आप किधर किधर लगाया है, तो द आंसर टू दैट आज तक महाराष्ट्र में किसी ने भी एक भी नहीं लगाया, नॉट इवन वन, ओके। इनफैक्ट इन एंटायर महाराष्ट्र एज ऑफ नाउ ओनली 4 applications have been submitted and all 4 have been done by our company and the first application was by Brookfield where I stay. So I will give you the background of that, okay, why it is like that, okay. So now this virtual net metering is only for residential, okay. कमर्शियल होगा या इंडस्ट्रियल मीटर होगा तो उसके लिए नहीं है। तो बहुत सोसाइटीज में क्या है, नीचे शॉप्स भी रहते हैं या और कोई रहेगा आपका हॉस्पिटल या ऐसा कुछ, बहुत सारे सोसाइटीज में क्या नीचे कमर्शियल रहता है ऊपर रेसिडेंशियल रहता है। सो दिस इज ओनली फॉर रेसिडेंशियल, इट इज नॉट फॉर कमर्शियल, ओके। तो अगर आपकी सोसाइटी में शॉप है तो उनके लिए नहीं, ओके। उनके लिए फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल there is another scheme called open access, which some people have asked me about it or members know about it, but open access has certain restrictions which are not for smaller consumers, मतलब 1 megawatt या ऐसा डिमांड बड़ा रहेगा तो उसके लिए वो सूटेबल है। लेकिन वर्चुअल नेट मीटरिंग हैज बीन डिजाइन्ड फॉर रेसिडेंट्स ऑफ हाई राइज टावर, सो इवन 10 किलोवाट का मीटर होगा तो भी वी कैन ऑप्ट फॉर इट, ओके। सो कोको सोलर व्हाट इज दिस, व्हाट इज वर्चुअल नेट मीटरिंग? तो इसमें सिंपल है कि the residents of a housing society can come together and apply to, I mean, Coco Solar will handle all the applications and everything, and we will set up a plant at a remote location in Maharashtra, क्योंकि आपके पास ऊपर जगह नहीं है, तो हम लोग एक रिमोट लोकेशन पे प्लांट लगाएंगे एट आवर इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे जो भी पावर जनरेट होगा वो हम वहाँ से MSEDCL को एक्सपोर्ट करेंगे, और जितना हमने उधर एक्सपोर्ट किया उतने यूनिट का क्रेडिट आपको इधर मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जो भी आपको क्रेडिट मिला, दैट क्रेडिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंज्यूमर्स इन अ प्री एग्रीड रेशियो। हम जब एप्लीकेशन डालेंगे तो हमको एक रेशियो देना पड़ता है कि फ्लैट नंबर 1 का इतना %, फ्लैट नंबर 2 का इतना %, जो भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स है वो जब हम करेंगे तो वहाँ पे मान लो 1 महीने में 1 लाख यूनिट जनरेट हुआ प्लांट से, तो उसका एक प्री एग्रीड रेशियो में यहाँ पे सबके मीटर में यूनिट्स का क्रेडिट आएगा, ओके। देन अभी इसमें कैसा है कि दिस इज अ हाईली बेनिफिशियल स्कीम राइट नाउ इन महाराष्ट्र, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ न्यू स्कीम एंड दे हैव नॉट इम्पोज एनी चार्जेस। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम उनका ग्रिड यूज कर रहे हैं MSEB का, बराबर, वहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली हम लोग उनका ग्रिड यूज कर रहे हैं, तो ग्रिड का चार्जेस वो लोग नहीं लगा रहे हैं। फिर जब हम ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिसिटी अगर ट्रांसफर करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड ट्रांसमिशन लॉसेस, वो लॉसेस भी अभी हमारे ऊपर वो चार्ज नहीं कर रहे अंडर दिस स्कीम वर्चुअल नेट मीटरिंग, लेकिन वो आगे जाके करने वाले हैं, ओके। अभी तक दे हैव एग्जेम्प्टेड टिल सच टाइम एज द इंस्टॉल्ड रूफटॉप कैपेसिटी इन महाराष्ट्र रीचेस 5000 मेगावाट, ओके। 5000 मेगावाट रूफटॉप कैपेसिटी जैसे ही महाराष्ट्र में हो जाएगा, दे विल स्टार्ट चार्जिंग ऑल दीज चार्जेस। सो जितना जल्दी आप इस स्कीम में जाओगे बिफोर दैट 5000 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो आपको फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स ये चार्जेस नहीं लगेंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक अ क्विक डिसीजन एंड मूव अहेड। इट इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली इन द रेगुलेशन, ओके। तो आप अभी आई विल कम टू द, सो कॉमन एरिया में है, अभी मैं इंडिविजुअल रेसिडेंट्स का, आप लोग जहाँ घर पे रहते हो, आपने कभी आपका MSEB का बिल देखा है क्या रेट आपको पड़ रहा है? हैव यू इवन बॉदर्ड टू सी? सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ आपको, आपने अगर रेट देखा होगा तो 0 to 100 यूनिट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 6.33 पर यूनिट आपको पड़ रहा है। When I say 6.33, this is a composite rate which includes your बेसिक रेट प्लस फ्यूल एक्चुअलाइजेशन चार्ज करके रहता है, व्हीलिंग चार्ज रहता है, तरह मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड देन देयर इज 16% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अभी आपका जितना फास्ट आप डिसीजन लेते हो आपके सोसाइटी का फायदा है एंड प्लांट विल बी कमीशन्ड 5 मंथ्स आफ्टर वर्चुअल नेट मीटरिंग अप्रूवल। आज तक महाराष्ट्र में एक भी सोसाइटी को अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल नेक्स्ट वीक में जो हमारे 4 एप्लीकेशंस गए हैं उनका अप्रूवल आ जाना चाहिए। सो
we are hopeful that those will be the first 4 societies. Swati madam, Brookfield will be one of the first. Yes. So next week, maybe we are expecting the approval. Once this approval process is set, then lot of societies are going to come into this scheme because it is very beneficial. So you need to ensure that आपका application जल्दी जाए, which is critical. Okay. Next. अभी currently what is the total installed rooftop capacity in Maharashtra? तो if you see महाराष्ट्र का 3034 मेगावाट ऑलरेडी हो चुका है by January 2025. मतलब 5000 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 100 मेगावाट से हर महीने में वो इंक्रीज हो रहा है. So maybe another 1 year या 1.5 years में ये लिमिट क्रॉस हो जाएगा. So the current फॉर्म में स्कीम आपको नहीं मिलेगा. You will have to pay extra the open access charges and other charges. Next. So now मैंने तो ये रेगुलेशन के बारे में बताया. अभी व्हाट इज द डील दैट कोको सोलर इज ऑफरिंग यू अगर आप लोग इस स्कीम में आ रहे हो. ओके, द डील इज दिस कि आपको कोको सोलर वंस यू साइन द फॉर्म, ओके, कंसेंट फॉर्म, so we are going to charge you 7.5 rupees per unit for the next 20 years, okay, reducing by 3%, okay, but वो तो है जो आएंगे आएंगे. हाँ. So thank you very much for patiently listening to what we had to say. I would recommend all of you to take benefit of this scheme till that threshold is not crossed. So long term the benefit is. Okay. Thank you very much. And please thank you for taking your time on Friday evening and dinner is there. So please have dinner. And we have a small, yes, and we have given a small souvenir bag. उसमें वो पूरा information booklet है. उसमें एक तो मैंने जो ऑफर बोला है वो ऑफर है, रेगुलेशन का कॉपी है, and there is also the Q&A जो frequently asked questions है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए तो. And there is a small souvenir का mug. So thank you very much. So please have dinner. Thank you. नमस्कार, माझं नाव हेमंत आहे. मी सुद्धा तुमच्यासाठी एक मॅनेजर आहे. या ठिकाणी चिन्मय सरने जे आपलं ज्ञान दिलं आहे सोलारचं, त्यासाठी आपण त्याला एकदा थँक्स बोलूया टाळ्यामधून. आणि याचं कारण असं आहे की यासाठी आलो आहे सगळ्यांचे मॅनेजमेंट कोर्स तो या गोष्टी आले आहेत, पण आपण सगळे मॅनेजर आहोत आणि आपण ज्या काही सोसायटी असतात त्या सोसायटीमध्ये एक शब्द करण्याचं आपण काम करतो. त्याच्यामध्ये विवाहाचे माणसं असतात, जाती धर्माचे माणसं असतात, त्याच्यामध्ये आपण सगळं साजरे करतो. त्याच्याप्रमाणे की फायनान्शियल मॅनेजमेंट करताना आपल्या सोलारचा आपण प्रस्ताव त्यांना द्यायचा आहे. कारण की आपण जर सगळ्यांनी बघितलं फायनान्शियल मोठी असो त्या ठिकाणी आपलं सोलर लाईटचं बिल फार जास्त असतं. 2 लाख 3 लाख 4 लाख असं आहे. त्याला मी ज्या सोसायटीत आहे 40 लाखापर्यंत बिल झालं त्यांनी ते सांगितलं. पण ते त्याची कॉस्टिंग जर केली तर त्याचा उपयोग चांगला होतो. आणि बऱ्याच जणांना गरम पाणी हवं असतं, सोलारची लाईट नको असतं, पण त्यांना गरम हवं. आमच्या सोसायटीत पण तसंच आहे, काही जणांना गरम पाणी आहे, काही जणांना पण जर बिस्कुट आपण जर त्यांनी जसं मॅडम बोलल्या किंवा त्या मॅडम बोलल्या की एक चांगला सेमिनार ठेवला तर त्याचा फायदा चांगला होईल. आणि मला सगळ्यांना शुभेच्छा द्यायच्या आहे की आपण एक चांगलं काम करतोय. दुसरं पाठ आणि याचे जे पर्यावरणासाठी जे बेनिफिट्स आहेत ते तर मी बोललोच नाही, ते तर आहेतच. Thank you very much. Thank you. So okay, please have dinner. वॉशरूमला गेलेली आहे. मला जरा टेबलवर ठेवून बघ. टेबल नाही लावले चेअर आपण लावू ना, काय हरकत, बसून थांबलो.
एक तू जेवण घ्यायचं थोडंसं खा ना, जास्त मी पण जास्त त्यांनी एवढं अरेंजमेंट केलेलं आहे, घ्या की तुला. मी तर ना पूर्ण माइंड ब्लँक होतं आणि मी कधी जेवण नाही केलं. मग ते तिकडे खा, ते तिकडे खा, स्नॅक्स खायचं हे काहीतरी खा ते खा. त्याकडे खाऊन घ्या, कारण कसं आहे तर त्यांनी एवढं अरेंजमेंट केलं, एवढे आलेले नाही आहेत एवढे.